السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ محترم و معزز و مکرم حاضرین و سامعین و ناظرین اکرام، بحمدہ تعالی، اللہ کے فضل، اس کی کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ اس پاک بزم اور مجلس کا حصہ ہیں۔ یقیناً دنیا کے اندر کتابوں میں سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، جس کی تفسیر اور ترجمہ کو سمجھنے، جاننے اور حتی الامکان اس پر عمل کرنے کی نیت سے ہم اور آپ حاضرین اور ناظرین جمع ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات سورۃ النساء آیت نمبر 19 تک مختلف عناوین کے متعلق بہت ساری باتیں بیان ہوئی، چاہے وہ وراثت کے تعلق سے ہو یا دیگر چیزوں کے بارے میں۔ آج کا درس انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء آیت نمبر 20 سے جہاں تک اللہ کی منشاء اور اللہ کی چاہت ہو حتی الامکان کوشش کی جائے گی کہ ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے رکھی جا سکے۔ قبل اس کے کہ درس کی شروعات ہو، چند نصائح ہیں، نصیحتیں ہیں، میں ضروری محسوس کرتا ہوں کہ اس کو آپ کے سامنے رکھ سکوں، گوشے گزار کر سکوں۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ درس کی شروعات میں یہ بات بتلائی جا چکی ہے کہ جو لوگ آن لائن ہو یا آف لائن کوشش کریں کہ جس آیت کا ترجمہ ہو رہا ہے وہ اپنے پاس اس کو موبائل کے ذریعے یا ہارڈ کاپی رکھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں کہاں پر ترجمہ چل رہا ہے، کہاں پہ تفسیر چل رہا ہے۔ یہ صرف حاضرین کے لیے نہیں ہے، جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو آن لائن میں ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے لیے وہ آیت اسکرین پر لگا دی جاتی ہے، ایک اچھا کام کیا جاتا ہے تاکہ آپ آیت کے حساب سے ساتھ میں چلیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ اس سے پہلے کئی بار بتلایا جا چکا ہے کہ جس آیت کا ترجمہ یا تفسیر درس کے اندر، وعلیکم السلام، درس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، اس آیت میں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، چاہے ترجمہ کے اعتبار سے ہو یا تفسیر کے اعتبار سے، تو سوال اس کے متعلق کیا جائے۔ اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ ٹاپک سے ہٹ کے بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، یہ قسم سے ذہن اور مائنڈ ڈائیورٹ ہو جا رہا ہے۔ مسئلہ مسائل جاننا بہت اچھی چیز ہے، اس میں کوئی غلط اور کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ٹائمنگ غلط ہو جا رہی ہے نا۔ درس ہو رہا ہے جن آیات کا، تو کوشش ہونی چاہیے کہ ہاں اس میں جو چیز ہم کو سمجھ میں نہیں آئے، ایسے کہ ہم کوئی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں تو جو بھی ٹاپک پر ٹیچر پڑھاتے ہیں تو ہم اس کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ سر ہم کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، اپنا کیا بتلائیں۔ باتیں تو بہت ہے پوچھنے کی، تو کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ جو آیت جو ہے، جس آیت کا ترجمہ اور تفسیر کیا جا رہا ہے، اس کے متعلق سوال کیا جائے کہ ہاں آج کے درس میں یہ بات بیان کی گئی ہے اور ہم کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو اس کے متعلق باتیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو سوالات ٹاپک سے ہٹ کے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ آپ، میرا نمبر ہے یہاں کے جو ایڈمن ہیں یا جو بھی یہاں کے انتظامیہ ذمہ داران ہیں، ان سے آپ لے سکتی ہیں، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ کال ہی کرنا ہے، میسج کوئی چھوڑ دے، کوئی بھائی ہو کوئی بہن ہو، ایک میسج چھوڑ دے واٹس ایپ پہ کہ یہ سوال ہمارا ہے۔ جیسی نظر پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کی جائے گی کہ جلد سے جلد جو ہے اس کا تسلی بخش کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیا جا سکے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، ہم اور آپ سب مل کر اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ جو خوبصورتی ہے درس کی اور یہاں پہ جو پروگرام ہو رہا ہے وہ برقرار رہے، قائم رہے، اور جو چیز سیکھنے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں وہ چیز سیکھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 20 کے اندر بیان کیا: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ،
अगर तुम इरादा कर रहे हो कि एक बीवी के अलावा और बीवियां ले आओ, 2 3 या 4 जो शरीयत का कानून है, अगर एक से ज्यादा बीवी लाने का इरादा है, वो आतई तुम इहदा इहदाहुन्ना किंतारन, और तुम अपनी उस बीवी को खजाने के खजाने दे रखे हो, फला ताखुजू मिनहु शैआ, तो तुम उससे कुछ भी वापस ना लो, तुम उससे कुछ भी वापस ना लो। अताखुजू नहु बुहतानम व इस्म मुबीना, क्या तुम, बुहतान कहते इल्जाम तराशी को, बुग्ज इनाद को, क्या तुम बुग्ज उससे और खुली गुनाह लेने चाहते हो। देखिए ये आयत करीमा तलाक के मुतालिक है। आपको पता होना चाहिए कि शरीयत में जहां पर निकाह का कंसेप्ट है, जो निकाह किया जाता है, वहीं पर तलाक का भी मसला है शरीयत इस्लामिया के अंदर। और ये मसला ऐसा है तलाक का कि अगर तलाक का मसला ना रखा जाए तो जुल्म और ज्यादती और बर्बरियत की एक मिसाल कायम हो जाए। मसलन मियाँ बीवी, एक लड़का और लड़की में निकाह हो गया और तलाक ना हो, लड़का जितना चाहे पीटेगा बीवी को, या बीवी जितनी चाहे उसको तंग करेगी, जुदाई कैसे होगी, यानी हर हाल में एक्सेप्ट करना होगा, तो ऐसे तो जिंदगी चलेगी नहीं, है ना। तो इस्लाम ने तलाक का मसला लाया है कि जायज चीज हो, कोई मतलब ऐसे वैसे तलाक नहीं होनी चाहिए कि थोड़ी सी कुछ बात या तलाक हो, ये भी नहीं होना चाहिए। तलाक का मतलब ये हुआ कि एकदम अनबन हो, और अनबन इस तरीके से हो कि एक दूसरे से बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, और करीब है कि कोई बहुत बड़ा घटना घट जाए, तो ऐसी सूरत में सेपरेटली दोनों अलग हो जाए। शौहर अगर बीवी को जो डिवोर्स देगा उसको तलाक बोलते हैं। बीवी को भी अल्लाह ने इख्तियार दिया खुला के नाम से कि औरत भी अगर शौहर से परेशान आ गई तो खुला ले सकती है। लेकिन इसके बारे में अगर हम तफसील में, चूंकि टॉपिक ये नहीं है, तलाक के मसले में जाए, खुला के मसले में जाए, तो अल्लाह ने ये भी कहा है, सूरत तलाक एक सूरह ही नाजिल हुई कुरान मजीद के अंदर, और तलाक में अगर हम जाएं तो अल्लाह ने कहा कि आसान तरीके से तलाक दो। जैसे आजकल तलाक होता है मारपीट होकर, लड़ाई झगड़ा थाना पुलिस होने के बाद ही तलाक होता है। अल्लाह ने कहा कि बिल्कुल तलाक दो, तलाक देने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आसान तरीके से, जैसे निकाह अच्छे तरीके से करो, तलाक भी अच्छे तरीके से कर दो। जो वजूहात है तलाक देने की कि बीवी नाफरमान है, नमाज नहीं पढ़ती है ना, तो शोहर देखे कि इसके अंदर नाफरमानी बहुत ज्यादा है, अगर हमारी परेशानी तो समझ नहीं रही है, जायज वजह होनी चाहिए। बीवी भी शोहर के अंदर देखे शराबी है, जुआ खेलता है, नमाज नहीं पढ़ता, दीन का काम नहीं करता, बिल्कुल एकदम आवारा रहता, तो बेलग हो सकती है, ऐसे शख्स से अपनी जान छुड़ाए। लेकिन जो शरीयत का कानून है कि एक मरतबा में कोई फैसला ना किया जाए, यानी शादी का 8 दिन 10 दिन नहीं हुआ और हम डिसाइड कर ली कि लड़का सही नहीं है या लड़की सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वक्त होनी चाहिए किसी को भी समझने के लिए। बहरहाल तो मर्द जो अगर बीवी को छोड़ेगा तो उसको तलाक बोलते हैं, और बीवी अगर शोहर से अलग उसको खुला बोलते हैं। खुला के बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी हदीस है कि आप वसल्लम ने बयान किया कि अगर कोई औरत जानबूझकर अपने मुफाद के लिए अपने शोहर से खुला ले ले, और खुला लेने की कोई जेन्युइन वजह ना हो, तो ऐसी औरत जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी। ये भी याद रखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम शादी किया अब दिल भर गया, कैसे कोई सामान खेलते खेलते दिल भर जाता है तो उसके बाद कोई नया सामान ले ले, ये शादी भी ऐसा नहीं। जेन्युइन वजह है शोहर के साथ नहीं रहने का, तो आप बिल्कुल अलग हो जाइए, इस्लाम ने आपको रास्ता दिया। लेकिन ये है कि अब इससे अच्छा कोई शोहर मिलने वाला है, मिल जाए, इसको छोड़ दिया जाए, कैसे शादी होगी, तो छोड़ेंगे नहीं, शादी होगी नहीं, तो हम बिला वजह किसी वजह से तलाक ले लीजिए। शोहर भी ये सोचे कि मेरी बीवी है तो नौकर बना कर लाएं, तो गुलाम बना के लाएं, हम जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं, ऐसा भी ना हो। ये आयत करीमा अल्लाह ताला बयान कर रहा है तलाक के मुतालिक। अल्लाह कह रहा है कि वह इन अरदतुम इस्तिब्दाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन, अगर तुम एक से ज्यादा बीवी लाने की सोच रहे हो, है ना, आप लाइए, आपको इख्तियार है, आपको हक दिया गया कि आप बैक वक्त 4 बीवी रख सकते हैं। अल्लाह कह रहा है कि वह आते ही तुम इहदाहुन्ना किंतारन, और तुम उसे खजाने पे रखे हो, यानी महर की बात हो रही है कि तुम चाहे जितना महर दे रखे हो। अब अल्लाह के बयान कर रहा है फला ताखुजू मिनहु शैअ, तो उसमें तुम कुछ भी नहीं ले सकते। अगर तलाक दोगे, शौहर अगर बीवी को तलाक देगा तो बीवी उसको महर वापस नहीं करेगी, समझा रही है, क्योंकि तलाक शौहर दे रहा है। औरत अगर शौहर से खुला ले रही है तो वो महर वापस करेगी, उसको महर वापस करना होगा, क्योंकि शौहर
तलाक नहीं दे रहा। बात समझ में आ रही है? ये मसला याद रखें। औरत जब हट गई पीछे तब उसको महर वापस कीजिए, लेकिन शोहर अगर तलाक दे रहा है तो बीवी से महर नहीं ले सकता, उससे महर वापस नहीं ले सकता। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर बयान किया। आगे अल्लाह ने कहा अताखुज़ूनहु बुहतान व इस्म मुबीना, क्या तुम उससे खुली गुनाह और बुहतान बुग़्ज़ इनाद लेना चाहते हो? यानी तो जुल्म हो जाएगा ना। अगर तुम उससे महर लो और तलाक भी दे दो तो तुम उससे जो फायदे उठाए हो, जो उससे हम बिस्तर हुए हो, तो कितने बेकार हो जाएगा, ये तो शरीयत के खिलाफ काम हो जाएगा। तुमने उसको महर देकर बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया, ये अल्लाह बयान करना चाहता है। होता है ना, जैसे आजकल के शादियों में महर का बड़ा लंबा चौड़ा एक लिखावट आ रहा है, 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख, और पता चला कि 2 महीने बाद अनबन हो गई, मामला जो है सही नहीं है, तो शौहर अब उसको टॉर्चर करता है कि हम लोग छोड़ देंगे, मेरा महर वापस करो। नहीं, लड़का तलाक देगा तो महर वापस नहीं करेगी, ना ही वो मांग सकता है। उसके बाद अल्लाह ने इसी महर को और आगे बढ़ाते हुए बयान किया आयत नंबर 21 के अंदर, सूरह निसा आयत नंबर 21, वकैफ़ ताख़ुज़ूनहु, और तुम उसे कैसे ले सकते हो, वक़द अफ़ज़ा बाज़ुकुम इला बाज़, जबकि तुम आपस में एक दूसरे से तुम मिल चुके हो। यहाँ पे अल्लाह ने किनायतन लफ्ज़ कहा है मिल चुके हो, जबकि जो माना है कि तुम उससे हम बिस्तर हो चुके हो, है ना। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर किनायतन बयान किया है। बयान करने का माना मकसद एक ही है कि तुम उससे कैसे ले सकते हो वापस, जबकि तुम उससे हम बिस्तर हो चुके, मिल चुके हो। इसीलिए जब हम लोग मदरसे की तालीम में ये लफ्ज़ जब आए कि शौहर जब बीवी से मिले मतलब मुलाकात नहीं, मिलने के मतलब हम बिस्तर होना, है ना, मुबाशरत जिसको उर्दू के अंदर कहा जाता है। तो अल्लाह कह रहा है कि वह कई पता खुजून हो, तुम कैसे उसे ले सकते हो महर, वक़द अफ़ज़ा बाज़ुकुम इला बाज़, जबकि तुम आपस में दूसरे से मिल चुके हो, हम बिस्तर हो चुके हो। वो अखज़ना मिनकुम मीसाकन गलीज़ा, और तुम एक मजबूत अहद कर चुके एक दूसरे से। तो निकाह क्या है, एक एग्रीमेंट है, एक अहद है, एग्रीमेंट होता है वहां पे निकाह में जो पुरानी आयत पढ़ी जाती है, जो महर तय किया जाता है, जो गवाहान होते हैं, ये सब एक एग्रीमेंट है। तो अल्लाह कह रहा है कि तुम कैसे उससे वापस रह सकते हो जबकि तुम उससे मिल चुके हो। वो अखज़ना मिनकुम मीसाकन गलीज़ा, और एक बहुत मजबूत भारी भरकम अहद कर चुके हो। तो तुम्हारे लिए उचित और मुनासिब नहीं है कि तुम उससे महर की अदायगी मांगो कि नहीं मेरा महर वापस करो, तुमने हमको दिया है। अब महर की जो भी सूरत हो, चाहे पैसा दिया हो, चाहे जेवर जेवरात बना के दिए हो, तो हम आपको नहीं रखेंगे तो वापस कीजिए। तो ये चीज़ अक्सर होता है हमारे माशरे में। अगर आप गौर करें तो आप देखिए कि जब निकाह के बाद तलाक की जब नौबत आती है, खैर यहाँ पर जहेज की बात इसलिए नहीं हो रही है कि शरीयत में जहेज का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है अपने तौर पर, तो इसको हम यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये हम लोग का जाति मामला है, शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसमें भी हम गुनहगार हैं कि लड़की वालों पे एक दबाव बनाना, जहेज का मुतालबा करना, ना मिलने पर तंज करना, तरकीज करना और बीवी के साथ बुरा सलूक करना, ये कहकर ये खाली हाथ उनको भेज दिया, हमको भेज दिया गया, ये वगैरह वगैरह बहुत बेकार की चीज़ है। शरीयत इस्लामी इन चीज़ों से पाक है। मसला यहाँ पे ये है कि जब तलाक होता है तो महर भी देखा जाता है कि लड़की से मांगा जाता है कि हम आपको जेवर की शक्ल में दिए तो वापस करो। जब सामान वापस जाता है तो उसमें इस चीज़ का भी डिमांड और मुतालबा किया जाता है कि हमने भारी भरकम आपको महर हक मार दिया हुआ है, उसको वापस करें। जबकि अगर लड़का तलाक दे रहा है तो ऐसी सूरत में नहीं होगा। अब इसमें एक सवाल आपके जहन में चल रहा होगा कि आजकल म्यूचुअल तलाक हो रहा है ना, म्यूचुअल तलाक हो रहा है। म्यूचुअल तलाक क्यों हो रहा है? ये तो आखिरी चीज है, दुनिया से छुपा कर उसको लाया जा रहा है। वरना अगर देखा जाए कहानी में तो कहानी में यही चीज होता है, या तो लड़का नहीं रहना चाहता तो लड़की नहीं रहना चाहती। एकदम हकीकत यही है। होता क्या है कि ये जो पंचायत वगैरह आजकल बन रही है, इस पर भी बहुत अफसोस होता है और बहुत चिंता भी होती है आगे चलकर कि ये लोग तो समाज को बिल्कुल बिगाड़ देंगे। कोई मुसलमान होकर और अल्लाह का कानून नाफिज नहीं करना चाहता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं अपनाना चाहता। और जो बीच के जो लोग सालिसी करते हैं, मीडिएटर होते हैं, वो ये कहते हैं ऐसा करते कि एक जॉइंट है ना कागज बना लेते हैं और उसमें ये है कि आप भी साइन कर दिए, साइन कर दिए, ये आप पे दावा नहीं करेगी, आप उस पर दावा नहीं करेंगे और आप दोनों अलग हो जाएंगे। लेकिन जब ये बात काजी के पास जाती है तो काजी दो में से एक सर्टिफिकेट दे देगा, या तो तलाक का है तो खुला का। ये बात याद रखिए, काजी के पास म्यूचुअल सर्टिफिकेट नहीं होता है। ये दुनिया को दिखाने के लिए एक कोर्ट से एफिडेविट होता है, ये कानून के अंदर है, आप समझ रही ना, शरीयत के अंदर नहीं है। शरीयत में अलहदगी क्या है, या तो खुला होगा तलाक होगा, दो में से कोई एक आदमी रिस्क ले ले। दोनों आदमी अगर अल्लाह वाले को तो डरेंगे, अगर मैं बिला वजह तलाक दे रहा तो अल्लाह पकड़ लेगा।
अगर मैं बेदरवाजा खुला ले लूँ तो अल्लाह पकड़ लेगा। कुछ तो वजह होनी चाहिए ना, वजह तो होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों बिल्कुल राजी खुशी अलग हो जैसे निकाह कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। बात समझ आ रही है? अल्लाह ने यह महर के बारे में बयान किया कि जब शौहर बीवी को तलाक दे तो महर को वापस ना मांगे। अल्लाह ने कहा कि तुम कैसे उससे महर मांग सकते हो जबकि तुम बाज को बात से मिल चुके हो और तुमने एक मजबूत अहद रखा हुआ था। इसको भी एक बात याद रखें कि जो अल्लाह ने कहा मिसाकन गलीजा, ये बहुत अहम लफ्ज है। शादी ब्याह ये खिलवाड़ नहीं है, जैसा कि मुआशरती तौर पर आजकल देखने में आ रहा है कि इतना ज्यादा तलाक का मसला पैदा हो रहा है और आए दिन मामला बजाय इसके कि घाटे बढ़ते चले जा रहे हैं। हालात इतने पेचीदा और बेकाबू हो गए हैं कि अगर समझ लीजिए किसी का रिश्ता नहीं टूट रहा है तो मियाँ या बीवी से कोई एक बर्दाश्त करके है, ये समझ लीजिए आज के ऐसे हालात हैं कि अगर किसी अल्लाह ना करे घर सबका बसे, हम लोगों की यही दुआ है, लेकिन अगर किसी का टूट गया और किसी का नहीं टूट रहा है तो समझिए दोनों में से कोई एक आदमी बहुत बर्दाश्त कर रहा है तभी बचा हुआ है। तो क्यों हम बर्दाश्त करके रिश्ता निभाएं? मेरा कहने को दिन तलाक ले ले, बात समझ रही ना? बर्दाश्त करके रिश्ता नहीं चलाया जाता है। निकाह का मतलब होता है प्यार मोहब्बत से, उसमें लड़ाई भी प्यार मोहब्बत है। अगर मियाँ बीवी के दरमियान तू मैं हो रहा है, लड़ाई मतलब की बात से, तो ये भी एक प्यार और मोहब्बत की अलामत है ना। जिस घर में शादियां होती हैं, खुशी का प्रोग्राम होता है, क्या उस घर में मैयत नहीं होती? सोचना होगा, हमें समझना होगा कि जिंदगी सिर्फ खुशी का नाम नहीं है कि सिर्फ खुशी ही आए, कोई गम ना है। जिस घर में शादियां होती है, शादी चूंकि इसे कहा कि खुशी का मकाम होता है, चाहे उस घर के लड़के का हो या लड़की का हो, तो क्या उस घर में मैयत नहीं होती? गम नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। एक इंसान की जिंदगी के साथ अच्छाई या बुराई लगा रहता है। अल्लाह ने कहा ना अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने जिंदगी और मौत को पैदा किया इसलिए कि ताकि तुमको आजमाए कि तुम्हें अमल के एतबार से कौन बेहतर है। तो जिंदगी एक खुशी की बात है, मौत बच्चा पैदा होता है तो हम खुश होते हैं और उसी घर में कोई मर जाता है तो हम गमगीन हो जाते हैं। ये जिंदगी का एक हिस्सा है, पार्ट। तो हमें समझना होगा कि मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर तू तरार हो, तकरार हो, तो ये भी एक मोहब्बत का हिस्सा है, लेकिन इसको इतना ज्यादा ना बढ़ावा दिया जाए कि वो चीज आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा दरिया और समंदर में तब्दील हो जाए, बन जाए। ये दोनों में से एक आदमी को चाहिए कि अगर झगड़ा हुआ है तो फौरन उसको आने वाले औकात में सॉल्व कर दे, सुलझा दे, नहीं तो चीज बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 3 दिन से ज्यादा बातचीत किसी से बंद नहीं किया जा सकता। बहुत लॉजिकल बात है, बहुत लॉजिकल बात है कि अगर कोई 3 दिन से ज्यादा किसी से बातचीत बंद करे उसकी नमाज नहीं होती। अगर इस पर गौर किया जाए तो एक साइंटिफिक चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। अभी बातचीत किसी से भी बंद हो सकती है ना? कोई जरूरी नहीं कि दोस्ती में बंद होगा। आजकल ऐसा है कि भाई की बहन से बात नहीं हो रही, सालों साल बात नहीं हो रही, एक ही माँ से दोनों जन्म लिए हुए हैं, पैदा हुए हैं। मियाँ बीवी में बातचीत साल साल भर से बंद है, साथ में रह रहे हैं। मियाँ बीवी में 1 साल से बातचीत बंद है, लेकिन अंदर की बात कोई जानता नहीं, अब बताने वाली बात है भी नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ने कहा मीसाकन गलीजा, जबकि तुम एक दूसरे से मजबूत अहद कर चुके हो। तो निकाह एक मजबूत अहद है। अल्लाह ने अगर तलाक का कंसेप्ट दिया है तो ये उस सूरत में दिया है कि बिल्कुल शरीयत के खिलाफ जब कोई काम होने लगे तो आप तलाक दे दीजिए। जैसे कोई शौहर अपनी बीवी के अंदर बदकारी देख ले, आपको मालूम चाहिए अगर नमाज बीवी नहीं पढ़े तो तलाक दे सकती, सही याद रखिए। बीवी से शौहर कह रहा है कि आप नमाज पढ़े, नमाज की पाबंदी करो, नहीं कर रही है, कैसे पढ़े? कपड़ा धुलना है, खाना पकाना है, बच्चा संभालना, टाइम ही नहीं मिल रहा है। अगर शौहर इस पर तलाक दे दे तो गलत नहीं है। अगर कोई बीवी पर्दा ना करे, है ना, पर्दा का हुक्म शौहर कह रहा है कि आप पर्दा करिए, वो ना करे, इस सूरत में तलाक दे सकता है। लेकिन ये बताने की चीजें याद रखें। तो इस रिश्ते को, निकाह के रिश्ते को अल्लाह ने बहुत मजबूत बनाया है। और जाहिर सी बात है कि जो निकाह का जो बंधन है वो 2 अनजान लोगों में हो रहा है। लड़की कहाँ की है, लड़का कहाँ से, उसका बचपन कहाँ गुजरा, इसका बचपन कहाँ गुजरा, वो कैसे माहौल में पली, कैसे माहौल में बढ़ा, ये एक अनजान रिश्ता होता है। इतना आसान नहीं होता है कि एकदम लड़की आए और आने के बाद उस लड़के को पूरा काबू कर ले, पूरा कंट्रोल कर ले, लड़का बीवी को पूरा समझ जाए, ऐसा नहीं होता है। हम लोग जिस मुआशरे में रहते हैं, इस मुआशरे की बहुत सारी खराबियां हैं। एक खराबी ये भी है कि मियाँ बीवी में तलाक माँ बाप को ऐसे हो जाता है, घर वालों की वजह से तलाक हो जा रही है, दोनों को एक दूसरे में भरोसा नहीं। जाहिर सी बात है कि जैसे हमारे लिए, हम लोग यहाँ नियामतपुर के रहने वाले हैं,
अब यहाँ से कोई आदमी वालेकुम सलाम काम के सिलसिले में कोई नियामतपुर से बाहर जाता है, अपना मकान छोड़ के, अपनी जमीन छोड़ के कोई बाहर काम करने जाता है, वो ये सोच कर जाए कि क्या घर की तरह माहौल मिलेगा। आप ऑर्डर कर दे, चाय बन के आ जाए आपके लिए, कपड़ा आपको कुछ झूल के दे दे, जैसे अम्मी प्रेस करके दे देती थी, है ना। ऐसा माहौल बाहर नहीं मिलेगा। हम चाहेंगे कि नहीं घर जैसा माहौल हो, जैसे घर में रहते थे, सोते थे, उठते बैठते, खाते पीते, जहां ड्यूटी करे वहां भी उनको ऐसा माहौल मिले, नहीं होगा ऐसा। जो लोग बाहर जाके काम करते हैं, जिंदगी गुजारे हैं, उनको पता ही है जो बाहर काम कर रहे घर छोड़कर, कि उसमें सब कुछ आपको करना होगा। तो एक तलाक की बहुत बड़ी वजह यह भी है कि जो लड़की ससुराल जाती है तो ससुराल वालों को लगता है कि लड़की एक दिन में सारा कंट्रोल संभाल ले, हमारे घर के क्या नियम कानून और रूल रेगुलेशन है, कवायद और जवाबित है, वो लड़की आए और पूरा कंट्रोल कर ले। ये हम लोगों का मिजाज है। हम में से कोई किसी को टाइम नहीं देना चाहता, और अगर वो नहीं कर पा रही है तो वो कंप्लेन कहाँ जाता है, बेटे के पास। ये हर घर की बात है, और इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि आखिर में बात ये हो जाती है कि तलाक की नौबत आती है। जाहिर सी बात है, वो लड़की घर छोड़कर गई है, किसके भरोसे गई है? अपने शौहर के भरोसे। शौहर ही सपोर्ट ना करे तो फिर किसके भरोसे वो रहेगी? रहना तो उसको उसी के भरोसे है। तो तलाक की एक ये भी सूरत है, मियां बीवी ठीक है आपस में, घर के प्रॉब्लम की वजह से तलाक हो जाएगी, घर के प्रॉब्लम की वजह से। तो हमें इन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मीसाकन गलीजा, एक मजबूत आहद तुम कर चुके हो, जब मजबूत आहद किए हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम दोनों की जिम्मेदारी मियां बीवी की, कि हम एक दूसरे को समझ के लेके एक दूसरे की परेशानी को बांट कर आगे बढ़े। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया आयत नंबर 22 सूरह निसा आयत नंबर 22 में, वला तनकिहु मा नकहा आबाउकुम मिनन निसा, और तुम उन औरतों से निकाह ना करो जिसे तुम्हारे बाप ने निकाह किया है। यहाँ अपनी माँ से तो हराम है निकाह, वो आयत आएगी नीचे। यहाँ सौतेली माँ का जिक्र हो रहा है कि जिन औरतों से तुम्हारे बाप ने निकाह किया है तुम उनसे निकाह ना करो। बस समझ में आ रही है? मसलन एक आदमी है, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया, उसकी पहली बीवी से बच्चे थे, उस आदमी ने दूसरी बीवी लाया, शादी की दूसरी औरत से। तो जैसे ही वो आदमी शादी करता है तो वो औरत बच्चों के रिश्ते में क्या लगेगी? मां लगेगी। अल्लाह कह रहा है कि जिन औरतों से तुम्हारे बाप ने निकाह किया उनसे तुम निकाह ना करो। तो इसमें हम दोनों माना ले सकते हैं, अपनी माँ से कोई निकाह नहीं कर सकता बेटा, ठीक है, और सौतेली माँ से भी निकाह नहीं कर सकता। इसमें एक मसला आता है कि बाप ने निकाह किया और बाप का इंतकाल हो गया यानी वो औरत और बाप में हम बिस्तरी नहीं हुई, आज सुबह निकाह हुआ, शाम को इंतकाल कर गया। हो सकता है किसी के साथ भी मौत का घटना हो सकता है। तो ऐसी सूरत में क्या, अब तो बाप ने उसको छुआ ही नहीं, इससे जब वो कबूल हुआ है तो क्या बेटा उससे निकाह कर सकता? इसी सूरत में भी नहीं कर सकता, क्योंकि निकाह हो चुका है, वो एक माँ की जगह ले चुकी है, सौतेली माँ है, तो निकाह नहीं। अल्लाह ने यहाँ पे यही बयान किया, वला तन की उम्मा ने कहा आबाउकुम मिनन निसा, और तुम उन औरतों से निकाह ना करो जिसे तुम्हारे बाप ने निकाह किया हो, इल्ला मा कद सलफ, मगर ये कि पहले जो गुजर चुका, पहले होता था जमाने जाहिलियत में, अगर बाप इंतकाल कर गया और बेटा भी ये जवान है, बड़ा है, शादीशुदा। देखिए ये बात जिसे बताई जा रही है कि बेटा माँ से कैसे शादी करे तो छोटा होता है। हम लोग असल में मुसलमान की जिंदगी जिए कर रहे हैं, हम लोग तो वो जिंदगी जी रहे हैं जो समाज में चल रहा है, ये समाज की जिंदगी है, ये मुसलमान की जिंदगी कहाँ है? हम जब तारीख में जाते हैं, नबी की जिंदगी में जाते हैं, तो हज़रत उमर फारूक अल्लाह के रसूल के ससुर थे कि नहीं थे? अबू बकर सिद्दीक भी ससुर थे, आयशा उनकी बेटी थी, हज़रत हफ्सा हज़रत उमर फारूक की बेटी थी, जिनसे अल्लाह के रसूल ने निकाह किया था। अल्लाह के रसूल की एक नतनी थी, जानती है कौन? फातिमा की बेटी, हज़रत हसन हुसैन की बेटी। हज़रत हसन हुसैन की बेटी से उमर फारूक ने निकाह किया था। नातिन दामाद भी थे अल्लाह के रसूल के, उमर फारूक। अब सोचिए, उमर फारूक के साले हुए हसन हुसैन, हसन हुसैन की बेटी से उमर फारूक ने निकाह किया था। अली रज़ी की बेटी से उमर फारूक ने निकाह किया था। अब अली रज़ी ससुर हो गए उमर फारूक के, उमर फारूक की बेटी से अल्लाह के रसूल ने निकाह किया था। उमर फारूक के बेटे भी हो गए और वो ससुर भी हो गए, अल्लाह के नबी। जो निकाह जायज कर सकते, लेकिन हमारे मुआशरे में क्या कहा जाएगा? तो हमने भी मुसलमान की जिंदगी कहाँ जी? हम तो वो चीज देख रहे हैं जो सामने है, हकीकत नहीं देख पा रहे हैं। ये चीज अगर हमारे मुआशरे में हो तो सोच लीजिए क्या हाल होगा। आपको इलाका छोड़ना ही होगा, कड़ी पार होना होगा, उस शहर में आप नहीं रह सकते। अब देखिए सहाबा की जिंदगी की बात हो रही है,
यहाँ पे अल्लाह ने वही बात बयान की कि जो पहले गुजर चुके। जमाने जाहिलियत में था कि अगर बाप मर जाता तो बेटा उस औरत से शादी कर लेता। बेटा इसलिए करता बेटा जवान होता था तो शादी कर लेता, इसलिए अल्लाह ने कहा इल्ला मा कद सलफ, मगर जो गुजर गया, जो पहले गुजर गया वो खत्म। अब जब ये हुक्म आ गया तो अब उस पर अमल नहीं किया जा सकता, अब उस चीजों पर अमल नहीं किया जा सकता। इन्नहु काना फाहिशतन व मक्तन व साअ सबीला, अगर कोई ऐसा करता है यानी अपनी सौतेली माँ से शादी कर लेता है तो ये क्या है, बेहयाई है, फाहिश फवाहिश है। इन्नहु काना फाहिशतन, ये बेहयाई का काम है। वो मक्तन और साअ सबीला, बहुत बुरी राह है, ये अच्छी चीज नहीं है, बहुत घटिया काम है। तो अगर किसी के वालिद ने ऐसी औरत से निकाह के, चाहे उसे दुखुल हुआ हो चाहे ना हुआ हो, समझा रही ना, बेटा उसे निकाह नहीं कर सकता, वो एक माँ के दर्जे में है, चाहे सौतेली है ही क्यों ना हो, लेकिन माँ के दर्जे में है। अब उसके बाद आयत नंबर 23, ये चौथे पारे की आखिरी आयत भी है और इस दर्स की आखिरी आयत भी है, आयत नंबर 23। इसमें ये बहुत बड़ी आयत है। इसमें अल्लाह ने बतलाया है कौन कौन सी औरत से एक मर्द शादी नहीं कर सकता, और सेम उसको उल्टा करते तो वो औरत इस तरह के मर्द से शादी नहीं कर सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें पूरी तफसील में बताया। सबसे पहली बात कि नसब एक होता है और एक रज़ात होता है। इसको समझ लीजिए कि रिश्ता क्या होता है, एक नसबी रिश्ता होता है, जैसे आप हैं, आपके अब्बा, आपके दादा है ना, आप लोगों के ये नसब से चल रहा है, तो हमारे अब्बा थे, उनकी अदालत है, या हमारे बेटे थे फिर उनके बेटे होंगे, ये नसबी रिश्ता, जो खून का रिश्ता बोलते हैं जिसको। एक होता है रज़ात का रिश्ता और एक होता है ससुराली रिश्ता। किसी भी इंसान की जिंदगी में 3 रिश्ते होते हैं, एक ददिहाल, एक ननिहाल और एक ससुराल। शादी के बाद 3 रिश्ता होता है। एक रिश्ता होता है रज़ात का। रज़ात किसको बोलते हैं, रज़ात का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि किसी का बच्चा पैदा हुआ, उसकी माँ जो है दूध नहीं पिला पाए, अभी ना सब सेरेलैक वगैरह निकल गया, पहले नहीं था। पहले सब सिस्टम क्या था, अगर किसी औरत को दूध नहीं हुआ तो अपने पड़ोस की औरत से जिसके यहाँ बच्चा हुआ होगा उसको भेजती थी बच्चे को दूध पिलाने के लिए। खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा सादिया का दूध पिए हुए हैं, है ना। तो ये पहले का सिस्टम था। और जब इसका वाकया पढ़ेंगे मूसा अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ेंगे, जब उनकी माँ ने दरिया नील में उनको बहा दिया इस डर से कि कत्ल किया जा रहा था बच्चों को, और इत्तेफाक से वो मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में चले गए जिससे खतरा था, दुश्मन के घर में उनकी परवरिश हुई और वो दूध नहीं पी रहे थे। हज़रत आसिया जो थी फिरौन की बीवी, वो जन्नती औरत है, वो दूध नहीं पी रही थी, तो उन्होंने कहा कि ऐलान हुआ कि कौन इसको दूध पिलाएगा, तो खुद उनकी माँ हो जाती दूध पिलाने के लिए, वो पकड़ते ही नहीं थे दूध, वो एक मसला था। अगर पकड़ लेती तो एक रज़ात का रिश्ता हो जाता। यानी एक बच्चा अपने माँ को छोड़ के जिस औरत का दूध पिएगा, उस औरत के जितने बाल बच्चे होंगे सब इसके रजाई भाई बहन, ये बताना मकसद है, जिसको रज़ात कहते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए कि दूसरी औरत दूध पिलाना कोई गुनाह नहीं है, पिला सकते, माँ को नहीं हो रहा है, बच्चा का भूख मिटाना कहीं से, अभी खैर डब्बा का दूध अगर निकल गया तो नौबत नहीं आती है, लेकिन अगर आ गई तो, अगर आ गया नौबत, या कभी ऐसा होता है कुछ औरत खुशी खुशी बोलती दीजिए ना पिला देते, अब क्या दूध खरीदेगा, हम मेरा दूध बहुत ज्यादा होता है, मेरा बच्चा पी भी लेता है, दूध बच जाता है, हम पिला दें, तो उसको डायरी में लिख लेना चाहिए मेरा बेटा इसका दूध पिया हुआ है, वरना वक्त के साथ आदमी भूल जाता है, वक्त के साथ आदमी भूल जाता है। अगर घूम फिर उसकी बेटी की शादी हो गई तब आगे चल के, या मेरी बेटी उसके बेटा शादी हो गया तो रिश्ता हराम हो जाएगा। तो अब आप सच बताइए कि इस पर कभी गौर किया था समाज के अंदर, बताइए। तो दरसे कुरान के एहतमाम करने का यही मकसद है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम जानते ही नहीं, हमको सुनने में आ जाए, पता चल जाए, उसको रजात कहते हैं। अब अल्लाह ताला एक एक करके बयान करता है। नसब से 7 रिश्ते हराम हैं, उसी तरह रजात से भी 7 रिश्ते हराम हैं, सेम अल्लाह ने रखा है। जो रिश्ते नसब से हराम है वही रिश्ते रजात से भी हराम है। अल्लाह ने कहा सूरह निसा आयत नंबर 23 में, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माएँ हराम की गई, चाहे सौतेली माँ हो या अपनी माँ हो, माँ हराम की गई है। वह बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियां हराम की गई है, 2 हुए। वह अखवातुकुम, और तुम्हारी बहनें हराम की गई है। वह अम्मातुकुम, और तुम्हारी फूफियां हराम की गई है। वह खालातुकुम, और तुम्हारी खालाएं हराम की गई है। वह बनातुल अख, और भाई की बेटी हराम की गई है।
बनातुल उख्त यानी जिसको भतीजी बोलते हैं, बनातुल उख्त और बहन की बेटी यानी भगनी या भाजी जिसको बोलते हैं। ये 7 रिश्ते में माँ, बेटी, बहन, फूफी, खाला, भतीजी और भाजी। अल्लाह ने कहा इन 5 से निकाह करना क्या है? हराम है। यानी एक मर्द अपनी माँ से निकाह नहीं कर सकता, एक मर्द अपनी बहन से निकाह नहीं कर सकता, एक मर्द अपनी बेटी से निकाह नहीं कर सकता, एक मर्द अपनी फूफी जिसको बुआ बोलते हैं हम लोग उससे निकाह नहीं कर सकता, एक मर्द अपनी खाला जो माँ की बहन होती है उससे निकाह नहीं कर सकता, एक मर्द अपनी भतीजी से निकाह नहीं कर सकता, एक मर्द अपनी भाजी से निकाह नहीं कर सकता। ये अल्लाह ने बयान किया। उसके बाद अल्लाह ने कहा उम्महातुकुम अल्लाती अरज़ानाकुम, और अपने रजाई माओ से तुम निकाह नहीं कर सकते, यानी जिसका दूध उसने पिया है उससे भी उस निकाह नहीं कर सकता। रजाई माँ जिसका दूध पिया है। वो अखवातुकुम मिन रज़ाआ, और रजाअत से जो बहनें हैं वो भी, रजाअत से जो बहनें हैं उनसे भी तुम निकाह नहीं कर सकते, उनसे भी नहीं कर सकते। वो उम्महातु निसाइकुम, और अपनी बीवी की माँ से निकाह नहीं कर सकते, यानी सास से निकाह नहीं कर सकते। व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिनन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना, और तुम उन बच्चियों से भी निकाह नहीं कर सकते जो तुम्हारी गोद में है, जो तुम्हारी बीवी से है, यानी औरत का निकाह कहीं और हुआ था, उस शौहर से एक बेटी है, फिर ये औरत इससे निकाह कर लेती है एक आदमी से, तो जैसे ही निकाह हो जाता है तो वह आदमी उस बेटी से निकाह नहीं कर सकता। किन सूरत में पहले समझ लीजिए। आगे अल्लाह ने कहा अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना, जबकि तुम उसके साथ दुखुल किए हो, मतलब हम बिस्तर हुए हो। फ़इल्लम तकुनु दखलतुम बिहिन्ना, अगर तुम उससे हम बिस्तर नहीं हुए हो, फला जुनाह अलैकुम, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। यानी एक औरत है अपने साबिका शौहर के पास थी, अब वो तलाक हो गया या इंतकाल कर गया वो मैटर नहीं है, वो शौहर उससे, बीवी उससे आज़ाद हो गई, पहले शौहर से एक बेटी भी है। अब ये औरत एक दूसरे मर्द से शादी करती है आदमी से, सिर्फ शादी हुआ और जो है उस औरत का इंतकाल हो गया, दुखुल नहीं हुआ, हम बिस्तरी नहीं हुई, तब वो आदमी उस लड़की से शादी कर लेगा। मैं समझ रही है। लेकिन अगर दुखुल हो गया है तब वो शादी नहीं कर सकता। मिलाप हो गया तब वो बेटी के दर्जे में आ गई, मिलाप नहीं हुआ है तो बेटी के दर्जे से बाहर है। ये अल्लाह ने यह मसला बयान किया। आगे अल्लाह ने कहा वो हलाइलु अबनाअकुमुल लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, और जो तुम्हारे सलबी सगे बेटे हैं उनकी बीवियों से, यानी बहू से, जो सलबी सगे बेटे हैं बहुओं से तुम निकाह नहीं कर सकते। व अन तजमउ बैनल उख्तैन, और ना दो बहनों को एक जगह जमा कर सकते हो, दो बहन से शादी नहीं की जा सकती। एक मर्द 4 बीवी रख सकता है तो सोचे कि दोनों बहन अच्छी है हम ही कर ले, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दो बहन एक जगह जमा नहीं हो सकती। इल्ला मा कसलम, मगर जो पहले गुजर चुका है, पहले जाहिलियत में इसे होता था। इन्ना अल्लाह काना गफूर रहीमा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अब देखिए इसकी तफसीर समझिए। माँ से हुर्रमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माएँ हराम की गई। एक आदमी है, हम लोग हैं, हमारी जो अम्मी है वो हराम है, उस हिसाब से अम्मी की अम्मी क्या हुई? नानी। नानी से भी निकाह नहीं हो सकता। अब ऊपर जितना चले जाइए और नीचे जितना चले जाइए, लॉजिक समझ में आ रहा है ना क्या मकसद है? अब यहाँ अलग से नानी का जिक्र नहीं है, अलग से दादी का भी जिक्र नहीं है, समझ में आ रही है ना? तो अम्मी क्या अम्मी से निकाह नहीं हो सकता, ठीक है? अम्मी के बहन का तो जिक्र आ गया, खाला का, ऊपर और नीचे की बात हो रही है। ऊपर जितना चलिए नानी पर नानी जो भी है, और नीचे चले जाइए, उससे निकाह नहीं हो सकता। हुर्रमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, अब बेटी, एक आदमी, एक मर्द है, एक फादर है, तो वो अपनी बेटी से निकाह नहीं कर सकता। सोचिए कितना पाकीज़ा दीन है हम लोगों का। एक एक चीज बयान किया गया है। दुनिया के अंदर जो सवाल आपके जहन में आएंगे उसके बारे में अल्लाह ने बयान कर दिया, उसके बारे में अल्लाह ने बयान कर दिया, मना कर दिया हराम है। एक बाप अपनी बेटी से निकाह नहीं कर सकता। लेकिन आपको ऐसी ऐसी खबरें सुनने में आएंगी अभी इसी दौर की, कि एक मामा अपनी भगिनी से शादी कर लिया, बहन की बेटी से, और जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ एक सुपरस्टार है, बहुत मशहूर है, लेकिन ऑन कैमरा बोलने में अच्छा नहीं लगता, बहुत फेमस शख्सियत है, वीआईपी जिसको बोल सकते हैं, या वीवीआईपी। रिसेंट में उसने अपनी भगिनी से शादी करी, भगिनी भी कर ली मामा से शादी। लेकिन जब बात चली थी इस्लामिया क्या आती है, तो अल्लाह ने एक पाकीज़ा दिन हमें और आपको दिया है, एक साफ सुथरा पाक साफ दिन हमें मिला है। तो कोई बाप जो है बेटी से शादी नहीं कर सकता। अब यहाँ वही मसला आ गया,
कि अगर सौतेली बेटी हो तो उसमें बता दिया गया कि अगर उसकी माँ के साथ हम बिस्तर हुए तो बेटी के हुक्म में नहीं कर सकते, नहीं किए तो फिर जब माँ ही नहीं तो फिर बेटी कैसे हो जाएगी। बात समझा रही है ना, ये मसला है। उसके बाद है वह अखवात, तो तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बहनें यानी बहन से कोई भी भाई अपनी बहन से निकाह नहीं कर सकता। लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में बेइज्जत हुई उस जमाने ये मसला था कि भाई बहन में निकाह हो जाता था। हाबिल और काबिल की जो लड़ाई थी क्या थी, यही थे ना कि एग्रीमेंट हुआ था कि इस बहन से वो भाई शादी करेगा और वो भाई इस बहन से। लेकिन काबिल ने देखा कि ये तो काली है और खूबसूरत है, उसी पर तब अपना बिगड़ गया इस चीज को लेकर। तो ये वो थी इल्ला मा का सलफ जो पहले गुजर गया उसको छोड़ दीजिए, कुरान का अभी हुक्म जो है उस पर अमल करना है। बहन से निकाह नहीं हो सकता। अब आगे अल्लाह ने कहा अम्मा तुकुम, और ना फूफी से निकाह हो सकता है। फूफी किसको कहते हैं, वालिद की बहन को, अब्बा के बहन को फूफी कहते हैं। अब यहाँ फूफी भी याद रखें कि एक साथ फूफी और भतीजी को जमा नहीं कर सकते। समझा रही है, यानी 4 शादी करने का है ना मर्द को, तो चाह रहा है कि फूफी से भी कर ले उसकी भतीजी से भी शादी कर ले, दोनों एग्री हैं, नहीं कर सकते। बुआ को भतीजी के साथ जमा नहीं कर सकते, दोनों एक निकाह में नहीं रह सकते। ये मसला याद रखिए, ये सारी चीजें हदीस के अंदर आएंगी, इसकी तफसीर में। ये चीज भी हमारे माशरे में है। 2 चीज तो हम जानते हैं कि खाला और बहन बेटी दोनों निकाह में एक आदमी के, और 2 बहन भी एक आदमी के निकाह में है। ये मुसलमान की बात हो रही है, बिल्कुल कुरान की खुली खिलाफ वर्जी, और दोनों रह रही है। क्यों? इल्म नहीं है। अगर सोचिए जरा आप भी, अगर जैसे कुरान ना होता किसको अल्लाह तौफीक देता, या कौन तौफीक मांगता अल्लाह से कि हम ये चीज जानना चाहते हैं। बस जुमा में गए, जो टॉपिक इमाम साहब चुन ले वही सुन लेना है। ये डिसाइड इमाम साहब कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमको तो कुछ जानना है, तो जानने के लिए ऐसा कदम उठाना पड़ेगा ताकि इल्म हो जाए। अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी फूफिया हराम है, बुआ से शादी नहीं कर सकते। तो जब बुआ से नहीं कर सकते तो उसके भतीजी को भी निकाह में नहीं रख सकते। एक आदमी, अब वो लड़की और वो औरत भतीजी है दोनों आपस में, तो एक निकाह में नहीं रह सकते। फिर आगे अल्लाह ने कहा खाला तुकुम, और तुम ना ही खाला से शादी कर सकते हो, लेकिन खाला की बेटी से कर सकते हैं, फूफी की बेटी से कर सकते हैं ना, ये तो जानते हैं हम लोग। मामा की बेटी से कर सकते हैं। अब खाला की बेटी से निकाह किया, खाला से भी कर ले, दोनों को निकाह में नहीं रख सकते, ये हराम है। और तो जिक्र आगे यहाँ पे अल्लाह ने बयान कर दिया। अब उसके बाद बनातुल अख, भाई की बेटी यानी भतीजी, भतीजी से निकाह नहीं कर सकते। तो बनातुल उख, और बहन की बेटी, भांजी भगनी जिसको बोलते हैं हम लोग, उससे निकाह नहीं कर सकते। तो ये चीज याद रखें, किसको जमा नहीं कर सकते, क्योंकि एक से ज्यादा शादी की भी इजाजत है। अगर हम सिर्फ इसी के तर्जुमे पर हम फोकस करेंगे तो फिर जहन सवाल है तब ऐसा कैसे होगा, यानी कर सकते हैं, जिक्र नहीं यहाँ पे। तो समझा रही ना। तो भतीजी भगनी जो भी हो, और खाला बुआ फूफी खाला, ये सब को निकाह नहीं कर सकते, और ना इनके साथ इनकी भतीजियों को एक निकाह में रख सकते हैं। अब आगे अल्लाह कह रहा है वो उम्महातुकुम अल्लाती अरज़ानाकुम। अब यही 7 चीज रजात से चली आएगी। जिस औरत का हमने दूध पिया उससे शादी नहीं कर सकते, उसकी बेटी से नहीं कर सकते, उसकी उसी हुक्म में उसकी बेटी आ गई, उसकी बहन आ गई, वो सब हमारे रिश्ते में आ गई क्योंकि हमने उसका दूध पिया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि देखिए पैदा कौन औरत कर रही है, दूध कौन औरत पिला रही है, और अल्लाह ने कितना पाकीज़ा रिश्ता रखा है, कितना पाक रिश्ता रखा है कि अगर मान लीजिए किसी औरत का हम दूध पी लो, माँ नहीं है, अपने से हम शादी कर ले, तो इस मसले से एक मसला निकल के आए ना कि हम बिस्तरी के वक्त दूध नहीं पी सकते बीबी का। ये बतलाना मकसद है। समझ आ रही है? इसको याद रखिए आप लोग। बहुत सख्त वही इसके बारे में आई है। ये भी सवाल आजकल आता है कि क्या हम बीवी से हम तो उसका दूध पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं पी सकते। पी लेंगे तो फिर यानी का कैसे हराम होगा? तो ये भी हराम हो जाना चाहिए। समझ आ रही है? ये दूध जो है बच्चे के लिए होता है। अल्लाह ने औरत के पिस्तान में दूध जो दिया वो किसके खुराक है? बच्चे का खुराक है। बच्चा भी क्यों पीता है? क्योंकि माँ का रिश्ता है। बच्चे के पीने की वजह यह है कि रिश्ता माँ का, तभी तो पी रहा है। महीना बच्चे को दूध पिलाएगी। तो ये चीज याद रखिए। अब रजात से भी चले आइए, जिस वह उम्महातुकुम अल्लाती अरज़ानाकुम, और उस सारी माँ जिसने तुमको दूध पिलाया, चाहे अपनी माँ के अलावा चाहे एक औरत का दूध पियो, चाहे 10 औरत का दूध पियो, जितने औरत का दूध पिए सबको याद रखना चाहिए कि रजात में वो भी माँ है, और उनकी जो बेटे बेटी हमारे रजाई भाई बहन है, वो हमारे रजाई भाई बहन है।
وہ اخواتکم من الرضاع، اور رضاعت سے جو بہنیں ہیں، وہ امہات نسائکم، اور اپنی بیوی کی ماں سے ہم نکاح نہیں کر سکتے، جس کو ہم لوگ ساس بولتے ہیں، بیوی کی ماں جو اب ساس کے اوپر چلی جائیے، نانی ساس، دادی ساس، یہ سب جو ہے اسی کیٹیگری میں آ گئی، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، یہ وہی ہے کہ جو بچے تمہارے گود میں، یعنی جس بیوی سے ہے، دوسری بیوی ہے، پہلے شوہر سے جو بچہ تھا، جو لڑکی تھی، اس سے کس صورت نکاح نہیں کر سکتے؟ اگر بیوی سے ہم بستر ہوگی تو نکاح نہیں کر سکتے، اور اگر اس سے پہلی طلاق ہے، وہ انتقال کر گئی تو نکاح کر سکتے، وہ یہاں پہ اللہ نے بیان کیا۔ فلا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور تمہارے سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں۔ اس میں دیکھیں دو طرح کے بیٹے ہوتے ہیں، ایک بیٹا ہوتا ہے جو نسب سے ہے، ان کی بیوی بہو ہوگی تو بہو سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ایک بہت مسئلہ بہت پہلے، ایک مرتبہ 10-15 سال پہلے یا قریب 20 سال پہلے گرمایا تھا، عمرانہ کا معاملہ، یوپی کا تھا، اور اس میں عجیب و غریب فتویٰ دے دیا گیا۔ شوہر نے کیا کیا تھا، بہو کے ساتھ ہم بستر پہ، زنا کہہ سکتے ہیں، ریپ کہہ سکتے ہیں، شادی نہیں ہوئی تھی، تو یہ مسئلہ بہت گرمایا تھا اس کو، اور کچھ ایسے علماء نے فتویٰ دے دیا کہ نہیں، نکاح ٹوٹ گیا بیٹے سے، اور یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ نہیں، نکاح کیسے ٹوٹ جائے گا؟ نکاح کیسے ٹوٹ جائے گا؟ تو نہیں، بیٹا بھی ہم بستر ہوا، باپ بھی اسے ہو گیا، تو ماں ہو گئی، وہ ماں ہو گیا، نکاح ہوا ہی نہیں۔ اس کو ماں نہیں بولتے، اس کو زنا کہتے ہیں، وہ زنا کیا ہے، زنا کیا ہے، نکاح کا تب تو یہ مسئلہ آتا ہے کہ نکاح ہوگا کہ نہیں۔ یہ بہت زیادہ مسئلہ سپریم کورٹ تک گیا تھا یہ معاملہ، بعد میں فیصلہ آیا، علماء نے اس پر وچار کیا کہ ہم نے جلد بازی کر دی بولنے میں، نکاح کیسے ٹوٹے گا؟ سسر بہو ہے لیکن اس نے زنا کیا، زنا کا جو حد ہے وہ مقرر کیا جائے گا اس کے اوپر، اس سے اس کا بیٹا کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، وہ اس کی بیوی ہی رہے گی۔ تو یہاں پہ دو طرح کا بیٹا، ایک بیٹا جو سلبی یعنی سگا بیٹا ہے، اس کی جو بہو بیوی ہے وہ بہو کہلائے گی، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک لے پالک بیٹا ہوتا ہے جس کو آدمی پوسے ہوا ہے، وہ اپنا نہ نسب سے ہے نہ حسب سے، کسی سے نہیں ہے، اس کی بیوی اگر ہے تو اسے نکاح ہو جائے گا، کیونکہ وہ نسب سے نہیں ہے، نہ رضاعت سے، کسی طریقے سے نہیں ہے، اس کو لے پالک بولتے ہیں، جس کو آدمی پوستا ہے۔ سمجھا رہی نا؟ آگے لانے کے بعد ان تجمعوا بین الاختین، نہ تم دو بہنوں کو ایک جگہ جمع کرو، یہ بھی بہت گھٹیا کام ہے یہ سب، اور ہمارے معاشرے میں سب ہو رہا ہے، دونوں بہنیں رہ رہی ہیں نکاح میں، ان کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن ان کے اعتراض کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ قرآن کا حکم اول رہے گا، پہلے قرآن ہی آئے گا، اس کے بعد ہی کوئی آئے گا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی اللہ نے صاف صاف کہہ دیا، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور نہ ہی تم دو بہنوں کو جمع کرو ایک نکاح میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایک سے طلاق ہو جائے یا وہ ایک انتقال کر جائے، سمجھا رہی ہے؟ تو ایسی صورت میں آپ دوسری سے کر لیجیے، جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی دو بیٹیوں سے نکاح کیے تھے، رقیہ سے، ام کلثوم سے۔ رقیہ کے جب شوہر تھے، رقیہ کا انتقال ہو گیا بدر میں، اس کے بعد ام کلثوم سے اللہ کے رسول نے انتقال کروا دیا، تو عثمان غنی اللہ کے رسول کی دو بیٹیوں سے شادی کیے ہوئے تھے، لیکن ایک نکاح میں نہیں رکھے تھے، ایک کے انتقال کے بعد ام کلثوم سے اللہ کے وسلم نے رشتہ کروا دیا، سمجھا رہی؟ تو دو بہن کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے، نہ خالہ بھتیجی بوا بھتیجی کو جمع کر سکتے ایک نکاح میں، الا ما قد سلف، مگر جو گزر گیا، جو پہلے چلتا تھا جاہلیت میں وہ تو ختم ہو گیا، اب قرآن کا نیا حکم آ گیا۔ ان اللہ کا نا غفور الرحیمہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آج کا درس یہاں پر ختم ہوا، اس کے تعلق میں جو بھی اگر کوئی بات ہو، سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوشش کریں کہ ٹاپک پر سوال لیں، ٹاپک سے باہر سوال نہ جائے۔ مطلب رضاعت کا جو معاملہ آپ نے بتایا، تو رضاعت میں جو ماں ہے تو کیا اس کی وراثت میں اولاد کا حصہ ہوتا ہے؟ سوال یہ کہ رجعت میں جو ماں بنے گی، جس بچہ جس ماں کا دودھ پیا ہے، تو اس کی وراثت میں کیا اس کو حصہ ملے گا؟ نہیں، حصہ نہیں ملے گا، رجعت سے جو رشتہ قائم ہو رہا ہے وراثت سے ہٹ کے، اس میں اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ یہاں سب مرد کو طلاق کی ہے، عورتوں کو کھلا کے، اس کے پیچھے کیا حکمت کیا ہے؟ دیکھیے سوال یہ کہ طلاق اور خلا کی حکمت کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے طلاق اور خلا کا جو ایک ایک حق ہے، مرد کا ایک عورت کا ہے، دیا ہے؟ یہ تو میں نے خطبے کے شروع میں بتلا دیا کہ اگر یہ چیز نہیں رہتا تو ظلم ہوتا، جیسے پہلے ہوتا تھا کہ جاہلیت میں ایک شوہر جتنا چاہتا بیوی کو مارتا، پھر اس سے ہم بستر ہو جاتا، پھر پٹتا، دکھ دیتا، پھر ہم بستر ہو جاتا، نہ وہ اس سے مطلب ایک ایسی ہڈی جو نہ نگلی جاتی نہ اگلی جاتی ہے۔ اسلام نے ان پر رحم کا معاملہ کیا، خلا کا طریقہ دے کر، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اس میں حکمت، سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ کوئی کسی کو غلام نہ سمجھے، کہ خرید کر لائے ہیں اور ہم جب چاہیں گے جو چاہیں گے کر سکتے ہیں۔
मर्द को भी कहा गया है कि तलाक की जेन्युइन वजह होनी चाहिए। आप अगर अपनी बीवी को छोड़े तो पहले ये कि आसान तरीके से छोड़े, अच्छे तरीके से छोड़े। जो तलाक का जो तरीका वो आगे आएगा इंशाल्लाह ताला। जब तलाक दो, एक मजलिस में 10 बार बोले, 50 बार बोले, एक ही तलाक होगा। तलाक की जो 3 किस्में हैं, तलाक रजाई, दूसरी किस्म तलाक रजी, तीसरी किस्म तलाक बाइन। रजी मतलब तो रुजू करना, वापस, रजाई मतलब लौटना, उर्दू का भी लफ्ज रुजू कर लो तो वापस लौटा लो। तो एक बार में 3 मरतबा बोल दे, एक मजलिस में एक जगह खड़ा होकर 10 मरतबा बोले, एक तलाक नाफिज हो जाएगा, उसमें लौटाने का हक है। तलाक का जो तरीका है, बीवी को अपने घर में रखो, रखेंगे तभी ना मोहब्बत होगी। यहाँ तो पहले फुर्सत लेके निकल जाते हैं, तो कैसे मोहब्बत होगी, कैसे रुजू होगा? सब गलत तरीका है कि तलाक की टॉपिक में बयान किया जाएगा। बहरहाल सबसे बड़ी हिकमत यह है कि कोई किसी को गुलाम ना समझे, खरीद कर लाए। अगर कोई जेन्युइन वजह पैदा हो रही है, शोहर जैसे शराबी है, मारता है, पिटता है, तो शोहर बीवी खुला ले ले, उसे छुटकारा पा ले। शोहर बेनमाजी है, शोहर नान नफका का जिम्मेदारी नहीं लेता, शोहर पैसे का दबाव बना रहा है, जहेज का दबाव बना रहा है, यानी ऐसी वजह जो सही हो। ऐसी ना हो कि कोई और लड़का पसंद आ गया तो हम छोड़ दिए खुला लेकर, क्योंकि मुझे खुला का इख्तियार है। ये सही बात है कि जो जाहिरी चीज है वो तो काजी खुला करवा देगा, लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस क्या है कि जो औरत जानबूझकर बगैर कोई उज्र के किसी शोहर से खुला लेती है, जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी। इस वजह से अल्लाह ने मर्द औरत को ये हथियार दिया, खुला और या तलाक। जैसे तलाक में एक मुतय्यन डेट है, वो डेट पूरा पार करने के बाद तलाक नाफिज होता है। जब खुला लेते हैं तो मतलब वो रियल टाइम पे हो जाता है, मतलब खुला। और दूसरी चीज, जैसे तलाक में वापस अगर उसी से निकाह करना है तो वो एक उसका सर्कल है। हाँ, खुला में अगर उसी से निकाह करना है वापस, जैसे अभी वो ठीक हो गया, शौहर नमाज पढ़ रहे हैं, जो भी है, या बीवी ठीक हो गई, ठीक है, तो वापस अगर उससे निकाह करना है, और जब खुला लेगी वापस, अगर साल या 6 महीने बाद उसको लगे कि हमको वापस से जाना चाहिए, तो इसका क्या निकाह हो जाएगा? उसमें कुछ ऐसा कोई कुछ टाइमिंग नहीं दिया गया। सवाल रिपीट करिए। ये सवाल ये कि जैसे तलाक कोई बीवी को आदमी देता है कोई शौहर, तो ये है कि 3 महीना में अलग ऑटोमेटिक जुदाई हो जाएगी तलाक की सूरत में। लेकिन जब तलाक नाफिज होगी, तलाक के बाइन, तो फिर रुजू नहीं हो सके, क्योंकि अब वो औरत कहीं और शादी करेगी, वो मर्द कहीं और शादी करेंगे, और बगैर कोई दबाव के उन दोनों का फिर से तलाक हो जाए, जहां जहां वो शादी किए हुए हैं, या उनके शौहर का इंतकाल हो जाइए, तो मतलब किसी चीज को मेरेकल बोलेंगे, कोई करिश्मा हो जाए, रेयर चांसेस, चांस बहुत कम है, ना के बराबर है, तब दोनों एक हो सकते हैं। लेकिन खुला में अगर बीवी निकल जाए तो फिर बाद में लौटना चाहे तो लौट सकती है। उसके लिए कोई ऐसा कोई ऐसा प्रोसेस खुला कोई इद्दत नहीं है ना। कोई दिक्कत हम सब ऑनलाइन में एक सवाल है, अगर हस्बैंड वाइफ में 2-3 साल से लड़ाई है और साथ में नहीं रहते तो निकाह बाकी रहता है कि? देखिए, सवाल है कि मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा है, अब 2-3 साल से बातचीत भी नहीं है, साथ में नहीं रहते हैं, तो निकाह रहेगा या बातिल हो जाएगा? सबसे पहली बात कभी मैंने खुतबे में कहा कि 3 दिन से ज्यादा इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है किसी से बातचीत बंद करने की। अगर बातचीत 3 दिन से ज्यादा बंद हो रहा है तो समझिए कि हमारी इबादत अल्लाह कबूल नहीं करेगी। तो नमाज हम पढ़ रहे हैं या दीगर जो इबादत कर रहे हैं, तो पहली बात ये कि इतना लंबा जाना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो सवाल करने वाला ये सुनने लगेगा कि नहीं, हम तो कोशिश तो करना होगा, किसी न किसी को कोशिश तो करना होगा। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि निकाह बाकी रहेगा और दोनों में से कोई एक आदमी चल कर आगे के करना क्या चाहते हैं, रहना चाहते हैं कि अलग रहना चाहते हैं। अगर निकाह बाकी मतलब दोनों रहना चाहते हैं, अगर किसी को भी हटने की सोच होती तो अब तक तलाक और खुला की बात आ जाती। तलाक और खुला की बात नहीं आ रही मतलब रहना चाहते हैं, तब ना कोई एक आदमी बढ़ता। निकाह ऐसे नहीं टूटेगा, निकाह बाकी रहेगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, बिल्कुल गलत तरीका है। वो हदीस भी याद होनी चाहिए कि अगर किसी का शौहर बीवी से नाराज होकर सो जाए तो रात भर फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते हैं। वो फरिश्ते रात भर उस बीवी पर लानत भेजते हैं कि तुम कैसी औरत है, वो सो गए तुम नाराज होकर। फिर वो हदीस है कि अगर किसी बीवी से उसका शौहर राजी नहीं होता, ऐसी औरत जन्नत में नहीं जाएगी। मरते दम तक वो शौहर अपनी बीवी से राजी नहीं रहा तो वो औरत जो है जन्नत में नहीं जाएगी। यहाँ तक कि बीवी के बारे में भी कहा गया कि अगर शौहर नाराज हो जाए तो वो बीवी जाए, उसका हाथ अपने हाथ पे रखे, बोले कि आप मेरे शौहर है, हम आपकी बीवी है, हम गलती की माफी तलाफी करते हैं, आप हमसे राजी हो जाइए। सारी हदीसें बयान की गई। तो 3 साल तो बहुत लंबा पीरियड हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें ज्यादा तो दोष तो लड़की का पैदा होता है कि आप हदीस पर अमल नहीं कर रही हैं, और दोनों खामोश भी हैं, अलग भी नहीं होना चाहते, मतलब रहना चाहते हैं, वरना किसी एक की तरफ से बात आ जाती है। और जब बात आ जाती है सवाल भी खत्म हो गया कि आदमी तलाक लेना चाह रहा है ना या खुला।
अच्छा, रज़ाई बहन है और उस रज़ाई बहन की औलाद और जो दूध पिया जो लड़का है इधर उसकी औलाद दोनों आपस में निकाह कर सकते हैं? देखिए सवाल ये कि रजाई बहन भाई भी तो शादी होगी नहीं, लेकिन जो दोनों भाई बहन उन दोनों के औलादे हैं बेटा बेटी, तो क्या वो लोग निकाह कर सकते? वो लोग भी नहीं कर सकते नहीं ना। रजात की वजह से वो नहीं कर सकते। तो इमाम साहब बोल रहे हैं, जैसे अगर जैसे बोला कि एक दूसरा झगड़ा हुआ है, अगर कोई झगड़ा करके चल जाता है अपना घर लड़की, तो उसका खर्चा पानी किसकी जिम्मेदारी होगा, लड़का का होगा या लड़की का लड़का का? देखिए सवाल ये कि कोई लड़की अपने शोहर से झगड़ा करके मायके चले जाती है और ये लॉन्ग टर्म हो जाता है, 2 साल या 3 साल 5 साल ऊपर जितना चली जाएगी। सवाल ये कि खर्च कौन देगा? देखिए जब तक निकाह में तो शोहर के ऊपर है खर्च देना, निकाह में जब तक है शोहर के ऊपर। शोहर एक चीज कह सकता है कि हम आपको मायके में बैठा क्यों खर्च देंगे, आप हमारे यहाँ आइए, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है तो हमारे यहाँ आना होगा। आप अगर चाहेंगे कि वहां पहुंचा दीजिए, ये सही तरीका नहीं है। इस्लाम ने अगर नान नफका की जिम्मेदारी दी है तो शोहर के घर में ना दी है, शोहर के घर में रहेगी तब ना। इसलिए तलाक के मसले में है कि जब पहली तलाक दे दी जाए तो बीवी अच्छे तरीके से रुकी रहे अपने शोहर के घर में, क्योंकि सामने रहेगी तो मोहब्बत होगा, दूर रहेगी तो कैसे मोहब्बत होगा। तो इनका जो सवाल है कि शोहर की जिम्मेदारी है, लेकिन सूरत ये होनी चाहिए कि लड़की आए अपने ससुराल, और अगर ना आ रही हो ना आ रही तो शोहर को अल्लाह के खौफ अगर होगा तो पहुंचा देगा। अगर चाह रहा है कि नहीं हम अपने तरफ से कोई गलती ना करे, हमारी बीवी है, चलो हम पहुंचा देते हैं। अगर ना दी तो गुनहगार नहीं होगी, क्योंकि हम कैसे थे, आप तो हमारे आ ही नहीं रही। सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके नान नफका को दे, आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आप हमारी खिदमत करें, ये भी तो है। तो अगर ऐसी सोच हम रोक देते हैं तो गलत नहीं, दे देते तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से अगर नहीं जाना तो फोन पे भेज सकते हैं। ऐसा तो कैसे ही भेज सकते किसी के। पहले के जमाने में क्या होता था, दूसरे के जरिए से राशन भिजवा दिया जाता था, कोई मोहल्ले का आदमी होता था। यहाँ सब उनका जो सवाल था, जैसे रजाई भाई बहन जो एक दूसरे उसका औलाद निकाह नहीं कर सकता, अपना भाई बहन का तो औलाद निकाह कर दे रहा था, फिर रजाई में क्यों नहीं करेगा? आपका सवाल क्या था फिर से बोलिए तो? रजाई भाई बहन का औलाद लोग निकाह कर सकता है कि नहीं? वही तो जो दूध पी है जो ना, हाँ अच्छा हाँ ना, निकाह कर लेंगे आपके शुरू में उसूल बता दिए थे कि जो अपने में एप्लीकेबल हाँ, होता है वो वो रजाई उसमें में है। applicable। हम तो सवाल नहीं समझ कंफ्यूज हो गए इमाम साहब, ये जो बात ठीक बातचीत बोले, अपने भाई में तो निकाह हो जाए। हाँ, क्योंकि बहन- मेरा भाई अब मेरी बहन ऐसे हाँ, करता है, वो ऐसे तो होता ही है। मतलब जो दूध पिए दोनों आदमी और उन दोनों की जो औलाद है वो कर वो लोग आपस में निकाह कर सकते, सकते वो लोग नहीं कर सकते जो दूध पिए हैं, हैं। लेकिन उनकी औलाद ना वो लोग नहीं कर सकते, वो लोग नहीं कर सकते। अच्छा, कोई औरत पर्दा ना कर रही हो या नमाज ना पढ़ रही हो, औरत का अपना शौहर का ख्याल नहीं रख रही हो, उसका हस्बैंड उसको तलाक नहीं दे रहा है, फिर भी साथ में रखे हुए, तो इसके साथ क्या मतलब? देखिए सवाल ये कि मतलब एक शौहर है अपनी बीवी से कह रहा है कि नमाज पढ़े, पर्दा करे, जो भी शरई उम्र है हाँ। उसकी तरफ वो दावत दे रहा है, लेकिन बीवी नहीं मान रही है, लेकिन शौहर तलाक नहीं दे रहा है ना। सवाल ये है तो क्या सही कि गलत है? देखिए ये तो बात शुरू में हम बताए हैं कि तलाक आखिरी रास्ता है, तलाक जो है ये आखिरी स्टॉप है। जैसे हम हावड़ा स्टेशन जाते हैं ना तो पटरी में खत्म हो, आगे कोई लाइन ही नहीं है, गाड़ी आगे नहीं जाएगी, वो लास्ट है। तलाक लास्ट स्टेप है। लेकिन अगर आप नहीं देते, अच्छा काम कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, कि आप उम्मीद में है कि चलो आज नहीं तो कल ऐसा होगा, एक पूरी उम्मीद है आप, लेकिन अगर दे दे रहे हैं तो ये भी अच्छा काम है, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम ऐसी बीवी रखें जो अल्लाह की इताअत करने वाली है, नबी की इताअत करने वाली है। ये हमने वजह बताया कि किन किन वजूहात से तलाक दे सकते हैं, देना ही नहीं, ये मैंने नहीं कहा, जब दे दीजिए। अगर आप इंतजार करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, इंतजार करें, कोई गलत नहीं है। तो हम लोग जैसे कि एक बार दो बार आदमी समझा रहा है, तीसरा बार समझा रहा है, ऐसे हाथ उठा सकते हैं। वो अभी आया था, गया था, 34-35 में आया था। यहाँ से लेकर निकाह करना। हाँ, ऑनलाइन में सवाल है, बोलिए। आएंगे। इनका सवाल ये है कि जैसे समझा रहे हैं बीवी को, एक शौहर बीवी को समझा रहे हैं, नहीं मान रही है, तो ऐसे क्या उसका हाथ उठा सकते यानी मार सकते हैं कि नहीं? अभी आयत नंबर 34-35 ये बात आई कि हल्की मार सकते हैं, उसको समझाने के लिए हल्की मार ऐसी ना हो कि जिसमें दाग आ जाए हाथ का या बेल्ट वगैरह का या लाठी डंडे का, यानी जिसको बहुत जबरदस्त मार बोलते हैं, वैसी नहीं, हल्का दे सकते हैं। हल्का फुल्का मार सकते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन है उल्टा आप पर अटैक हो जाएगा, इसलिए कैसे मारिए वो भारी कौन हो जाएगा? परहेज करें। मार सकते हैं, तो इजाजत दी है, हल्की मार सकते हैं। तो चेहरा को मार दे रहा कितनी हल्की मारता? है, चेहरे की नहीं। अच्छा, यहाँ से फरीदा दिला है, बड़ा सवाल समझ नहीं आ रहा है। बातचीत बंद करने का है, दोस्ती में भी क्या सेम चीज एप्लीकेबल होता है?
अरे सब पढ़ रहा ना मुझसे पूछिए सवाल ये है ना, बहन का सवाल है कि जैसे अभी बात आई कि 3 दिन तक अगर बातचीत बंद हो जाए तो अल्लाह ताला नमाज कबूल नहीं करते, 3 दिन से ज्यादा हो जाए। तो एक कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, या कोई भी है, वो साल भर से बातचीत बंद किए हुआ है, साल भर से, तो साल भर से बातचीत बंद किए हुआ है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा? देखिए वो ना बंद किया है बात, तो हम हर आदमी अपनी बात करें, चाहे हर आदमी अपनी बात करें। जैसे रिश्तेदारों में बातचीत नहीं रहती है ना, बातचीत नहीं रहती, बातचीत किसी से भी बंद हो, नमाज 3 दिन के बाद कबूल नहीं होगी। हम मिले तो सलाम कर दे, ये नहीं कहा जरा पाँव पकड़ना नहीं, बात करिए नमाज नहीं होगी, ऐसा नहीं करना है। कभी कोई ओकेशन में, कोई प्रोग्राम में, आपके कोई प्रोग्राम दावत दीजिए, वो आए ना, वो उसका मसला है। हम अपनी तरफ से ना चुके, 1 साल से बातचीत बंद है, वो कभी सामने आ जाए सलाम कर दे, खैर ना बोले, वो झिड़कते चले जाए, वो अपना अमल के हिसाब देगा, हम तो बस इसको बातचीत बंद नहीं बोल सकते। इसको कह सकते हैं एक आदमी कर रहा है, दूसरा आदमी नहीं कर रहा है, हमारा जो काम है करना है। ये नहीं बोला कि वो नहीं करता है साल भर से बंद, अगर साल भर से बंद है तो आपने कभी मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम का, जवाब ना दे, आप अपना काम करते रहिए। लेकिन पाँव पकड़ने की बात नहीं होगी, पकड़ लेना है कि आप नहीं भूलिएगा तो नमाजी नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं। कभी सामने देखा हो जाए, कभी मुलाकात हो जाए, आप सलाम करिए, रोकिए, नहीं ना रोकिए, उनका मामला है, अल्लाह उनसे पूछेगा, आपसे नहीं पूछेगा। बाहर करना हाँ, अपना काम अगर इमाम करना साहब जैसे अगर कोई बाहर नहीं करना, अगर हम पहल किए हैं फिर भी बात नहीं कर रहा है, तो उसके बाद दूसरा बार करना जरूरी है, छोड़ दो। हाँ, करते रहिए, आप एक बार में हो गया, अपना काम करते रहिए। खत्म कर दें। हाँ दर्स के इख्तिताम का ऐलान होता है इस दुआ के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों की मेहनत और कोशिशों को कबूल फरमाए, दीन दुनिया की सही समझ अता फरमाए, और हम में से जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। वाक़िअ दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।